Tuskless, Teddy, and the others began feeding around the periphery of the camp, apparently minding their own business and concentrating on eating grass. However, Tuskless surreptitiously turned the tip of her trunk towards the kitchen and the tents to smell what and who was there. Wafting from the place where the food was kept was the delicious odor of very ripe bananas. Tuskless loved bananas. She had first tasted them at the lodge feeding place, where a man came twice a day with a wheelbarrow full of vegetable and fruit scraps. These were usually peels and old outer leaves of lettuce and cabbages. But one day there was a whole stalk of overripe, almost fermented bananas. Tuskless liked the smell immediately, plucked one off the stalk, popped it in her mouth, and savored the sweet taste. She managed to eat most of them, sharing as few as possible with the others. From that day on, she particularly sought out bananas. On this evening, the smell was irresistible. She moved closer to the kitchen, a flimsy structure made out of a few wooden posts, sisal poles, chicken wire, and roofing felt. She could smell other good things as well, pineapples, oranges, and various vegetables. She also noticed that it was unusually quiet in the camp tonight. There were no voices, and there was no strong, immediate smell of humans. She stopped feeding and rumbled gently. Tanya answered from among the palms with her unmistakable, long, rolling rumble, but stayed where she was. Teddy, Tawny, and Tilly also answered, and they walked over to join Tuskless. These 4 animals, plus Tuskless's 2-year-old calf, slowly approached the kitchen with their trunks held out in front of them. They got within a few feet and stopped and listened. Still there were no sounds of people. Tuskless reached her trunk out and felt the outer wall of the kitchen. She wrapped her trunk around a sisal pole and pulled. There was a tearing noise as the pole was wrenched away. No one came out of the tent to chase them. The others moved forward and also started pulling on the poles and the wire. Tuskless quickly made a sizable hole in one wall of the kitchen. She reached her trunk in and tried to feel for the bananas. But they were on the opposite side of the kitchen, and a table and a cupboard were in her way. She became impatient and leaned her head against the wall and pushed. The building swayed before collapsing sideways. The bananas were under the tilted-over wall and roof, but Tuskless was undeterred. She went around to the other side, which was more or less intact, and started forcing her way through that wall. Once she got her head inside, she began to pull things out, push things over, open things up, and gather in as much food as she could. The bananas went first, of course, closely followed by the pineapples, oranges, mangoes, and papayas. These fruits, even large pineapples, could be placed whole in the mouth and crushed in the huge grinding molars with a great gush of juice. It was near ecstasy. The vegetables, carrots, potatoes, tomatoes, onions, lettuces, cabbages, cauliflowers, cucumbers, avocados, string beans, zucchini, eggplants went soon after. Most of the fruits and vegetables were stored in tin trunks, but this posed no problem for an elephant. The tin trunk was lifted up and turned upside down and stepped on a bit and kicked about if necessary until it disgorged its contents. Once the fresh produce was finished, Tuskless began to search around for other delicacies. She could smell bread and cookies and crackers in one wooden cupboard. This was knocked down and smashed open. The bread was quickly snatched up, and then the cookies and crackers were eaten.
box or plastic bag and all. Next, a small camping fridge and a cooler were crushed, but neither contained anything interesting. Another cupboard with glasses and plates in it was tipped sideways, and broken glass joined the other wreckage on the dirt floor of the kitchen. The bigger fridge was pulled and dragged from its place until it toppled over, disconnected from its gas cylinder. Noxious propane gas hissed out of the dangling tube with a sound and smell that would certainly have sent lesser elephants away. इंसान तो सभी होते हैं, फिर इंसान हो या जानवर हो। अब हम हाथियों की बहुत अच्छी स्टोरी सुनने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लो। और चलो देखते हैं एलिफेंट्स रेड द किचन। ये था उसका एक बहुत अच्छा सा एक लेसन जो हम स्टडी करने वाले। टसलेक्स है, टेडी है एंड अदर, मतलब दूसरे जो एलिफेंट्स हैं वो उनके साथ उस कैंप के आजू बाजू में घूम रहे थे और वो अपना अपना काम कर रहे थे। अपना अपना काम मतलब वो कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे थे, वो बाकी घास फूस जो है उसको खा रहे थे। अब वो घास फूस खाते समय वो मन ही मन में सोच रहे थे, ये जो टेंट लगा है ना, ये टेंट में बहुत कुछ मस्त मस्त खाने के लिए होगा, क्योंकि स्मेल आ रही थी। ये जो टसलेस है ना, इसने सबसे पहले स्मेल लिया। आहा, किचन से ना बहुत मस्त कुछ तो आवाज़, मस्त आवाज़ नहीं रही, स्मेल आ रही है। कौन होगा वहाँ पे, क्या क्या होगा अंदर, ये उसके दिमाग में अब चलने लगा था। किचन है, टेंट है, तंबू है, तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा। स्मेल आ रही, इसका मतलब जनरली हम लोग जंगल में पार्टी बनाने के लिए चले जाते हैं। तो पार्टी बोले तो बहुत सारा मस्त 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 खाना रहता है। तो इन जानवरों को ना आदत सी लग गई है। टसलेक को पहले जब वो बनाना उसने खाया था, वो लॉज वाला जो एरिया है वहाँ पे खाया था। वो जो एक ठेले वाला आदमी था ना, वो दिन में 2 बार आता था बेचने के लिए। एक बार क्या हो गया, वो वैसे आ गया था तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, केले फल वाला, केले वाला फल वाला। पता नहीं उसने क्या हो गया, उसके जो ठेला था उस ठेले पे सब्जियां भी थी, केला भी था, फ्रूट्स भी थे, ऑरेंज भी थे, बनाना भी थे, सारी चीज़ें वहाँ पे थी, मस्त से थे। अचानक से कोई लिया नहीं, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। पता नहीं रोड के वो साइड में उसने क्या कर दिया, सब चीज़ को फेंक दिया। अब ये सारी चीज़ें उसने फेंकने के बाद ठेला जो उसका था वो खाली हो गया। खाली होने के बाद वो बेचारा वहाँ से चला गया। अब ये जो छीना, ये सारी की सारी चीज़ें, ये जैसे ही इन एलिफेंट को स्मेल आ गया, ये तुरंत भाग भाग के आए और टसलेस ने पहली बार उस पके हुए, बहुत बहुत पके हुए इस बनाना को खाया। ओहो, आहा, वाह वाह, क्या टेस्ट निकला है, वाह वाह। उसके मुंह में तो पानी आ गया। वो जितना खा सकती थी उतने खाया। फिर अपने फ्रेंड्स को भी बताया, उनको भी दिखलाया कि ये यहाँ पे देखो फ्रूट्स का ढेर लगा है, ज़्यादा पके हुए जितनी भी चीज़ें, जितना भी वो खा सकती थी उतना। भाई हम लोगों के जैसे थोड़ी ना है कि 2 रोटी खा लो और बढ़ जाओ, बाद में फिर भूख लगेगी तो बाद में खाएंगे नहीं। एनिमल्स एक ही टाइम में उनको बेचारों को जितना मिलता है उतना खा लेते हैं, बाकी का बाद में। कभी कभी तो 2 दिन भूखा भी रहना पड़ता है। हम इंसान 2 घंटे नहीं रह सकते, वो 2 दिन रह जाते हैं। अब ये जो है ना, ये किचन की तरफ अब निकल पड़े थे। इनको पता था कि किचन के अंदर कुछ तो बहुत मस्त चीज़ है जिसका स्मेल इन लोगों को बार बार बुला रहा था। सबसे पहली चीज़ ये थी कि टसलेक अकेली तो नहीं जाना चाहती थी। ऑरेंजेस है, पाइनएप्पल है, श्योरली वेजिटेबल्स है, श्योरली वहाँ पे बनाना तो होगा ही होगा, ये टसलेस को पता था। लेकिन वो अकेली कैसे जाएगी, उसके साथ और भी तो कोई उसके साथ होना चाहिए। तो वो चारों पाँचों जो है वो कैंप की तरफ निकल पड़े। उनको पता था कैंप में रात को कुछ ना कुछ होने वाला है, इसलिए ऑलरेडी ये प्रिपरेशन सब किया गया है। लेकिन सुनो, एक मज़ेदार बात ये थी कि उस कैंप के आजू बाजू में कोई भी जेंट्स की, कोई भी आदमियों की, कोई भी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी, थे ही नहीं वहाँ पे। खाली उसको जो है ना, उनको स्मेल आ रही थी खाली फ्रूट्स की, वेजिटेबल की। कुछ तो अंदर बहुत मस्त सा डिलीशियस सा चीज़ रखा है जो पक्के मस्त सा हमारे लिए वेट कर रहा है। लेकिन जो आदमियों की स्मेल होती है, आवाज़ होती है, चिल्लाना होता है, चीखना होता है, ये कोई भी चीज़ उसको सुनाई नहीं दे रही थी।
फिर भी वो वहाँ पे गई। वहाँ पे जाने के बाद, तंबू के पास जाने के बाद उसने सुना, देखा, कुछ नहीं मिला, तो उसने टेडी, टोनी और टीडी को आवाज़ दे के पुकारा। इन्होंने भी यहाँ से रफ दिया, हाँ आ रहे हैं, तू आगे चल, हम पीछे से आते करके। फिर ये 4 एनिमल जो है ना, ये इसके फ्रेंड टासलेक्स और ये तीनों फ्रेंड, और ये जो है ये बच्चा है उसका 2 साल का, तो 2 साल के बच्चे के साथ ये निकल पड़े हैं। अब कहाँ पे निकल पड़े भाई, ये जो टेंट लगा है, ये टेंट के अंदर जो किचन है वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा सामान छुपा के रखा है, यही इनको खाने का है, और ये निकल पड़े। अब टेंट जो है ना, ये तो कोई सीमेंट की बनी हुई दीवार नहीं है भाई, कपड़े की दीवार है। इजीली एलिफेंट जैसे इतने स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल को इस कपड़े को फाड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इन लोगों ने फिर से स्मेल लेना शुरू कर दिया। अब टसलेक जो है ना, टसलेक सबसे पहले आगे बढ़ी, और उसने जो आउटर वॉल थी, वॉल बोले तो कपड़ा वाला था, वो हिला हिला के अंदर घुस सकती है, इतना सा डिस्टेंस उसने बना लिया था। जितने भी क्या बोलते हैं उसको, कॉर्नर लगे होते हैं, वो सारे के सारे उसने सबसे पहले निकाल दिए। फिर दूसरे एनिमल्स को अंदर घुसने के लिए उसने प्लेस बना दी, सभी के सभी दूसरे वाले जो एनिमल्स है उसके साथ उसके फ्रेंड। ओहो आहा, क्या मस्त सा स्मेल आ रहा है, पके पके फलों का स्मेल था ये। टेंट में कोई भी नहीं है, ये सबसे पहले देख लिया। अगर समझो ये होता था तो जैसे टेंट को हिलाते थे तब भी वो दौड़ दौड़ के उनको मारने के लिए आता था, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। इन लोगों को पता चला कि आई भाई ये पूरा का पूरा माल अपने लिए रखा है, खा लो, पी लो, बटेर लो, जितना खा सकते उतना खा लो। सभी ने जोर जोर से उस एक टेंट को फोड़ना शुरू कर दिया। जहाँ से भी मस्त से स्मेल आती थी वहाँ पे चले जाते थे, जो बनाना है ये है। अब भाई टसलेस को अगर बनाना पसंद है तो वो श्योरली बनाना कहाँ है वहाँ भी ढूंढेगी। उसने ढूंढा, लेकिन वो ऑपोजिट साइड में आ गई थी, तो ऑपोजिट किचन के ऑपोजिट साइड में होने के कारण उसको टेबल मिल गया, उसको कबर्ड मिल गया, उसको तो वहाँ पे जो ग्लासेस रखे थे वो दिख गए, वहाँ पे जो प्लेट्स रखा है वो दिख गया, लेकिन फ्रूट्स नहीं दिख रहे थे। वो ढूंढ रही थी इधर उधर, आहा ओहो ए हे, वहाँ पे उसको आराम से अब दिख गया। ऊपर जो है ना, देखो 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 देखो, ऊपर दिख रहेगा, ये ऊपर क्या है, ये भी लोग बड़े चालू हैं। इन लोगों ने जो बनाना है ना वो ऊपर, मतलब जो एक तंबू के ऊपर जो जाली होती है उसके ऊपर वहाँ पे लटका के रखा था। अब ये जो है ये हाथी, इसको ये स्मेल करते करते वहाँ पे पहुँच गया, और उसने आराम से पहली चीज़ अगर कोई खाई होगी, कौन सी खाई होगी, टसलेस ने पहली चीज़ भाई केला ही तो खाया, क्योंकि आपको पता है हाथियों की सबसे ज़्यादा फेवरेट अगर कोई फ्रूट होती होगी तो वो बनाना ही है। इसीलिए मोस्टली जब भी आप कभी जाओ जंगल में और हाथी है, हाथी को मिलना है, तो पहले जा 1-2 किलो 1-2 डज़न केला लेके जाना भैया, उनको देने के लिए। वो तो कोई ये नहीं है, मांस वगैरह नहीं खाते, वो तो फल फ्रूट वाले वेजिटेरियन एनिमल है ये हाथी जो है। इसने से एक एक के बाद एक सारे जितना भी फूड है, जितने भी फ्रूट्स है, ये सारे इकट्ठा कर लिए। और हाथी के लिए कोई ये नहीं है कि वो हमारे जैसे एक एक टुकड़ा खाएगा भाई, जल्दी ही जैसे ही पूरा का पूरा लिया मुंह में डाल दिया, लिया मुंह में डाल दिया, न कोई उसका ऊपर का छिलका निकालना है, ना ही बीज निकालना है, कुछ भी नहीं। अरे लिया खाया, लिया खाया, लिया खाया। ये देखो पपैया, अरे वाह, ये देखो ऑरेंज, ओहो आहा ए, मस्त से मुंह में डाल रहा है और खा रहे थे। एक नहीं, ये तीनों चारों जो है सारे के सारे खा रहे थे। टसलेक्स अकेली नहीं भाई, सभी अपने अपने तंबुओं में घुस के मस्त से मज़ा कर रहे थे, और इनका जो मुंह में जो दांत है वो ग्राइंडिंग का काम कर रहे थे। ये क्या, यहाँ पे तो अब वेजिटेरियन भी है, वाह 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 वाह, कैरेट है, पोटैटोज़ है, टोमेटोज़ है, ऑनियन है, इससे हाँ, कैबेज भी है, कॉलीफ्लावर भी है। भाई पाव भाजी बनेगी, मिक्स वेज बन जाएगी, पेट में अब ये सब एक साथ चला जाएगा तो उसको पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हाथी भैया जो है, इन्होंने सोच लिया सारा का सारा माल यहाँ पे आज तो आहा ओहो ओए, आज इनकी तो निकल पड़ी थी, बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी यार। पहले फ्रूट के बाद अब वेजिटेबल, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। ऐसे करते हुए इसने सारे के सारे वेजिटेबल के ऊपर अपनी मुंडी ला ली, और एक एक चीज़ ये करके जा रही है मुंह में। ओहो गई वो गई, कॉलीफ्लावर गई भाई, आहा ये लो कैबेज भी गई,
ओहो पोटैटो पूरे के पूरे 2 किलो पोटैटो, अरे बाप रे, बैरल का बैरल ही उठा लिया। ये बड़ा सा आ करने की कोशिश में लग गई, लेकिन ये क्या, बैरल का बैरल पूरा नीचे गिर गया और जो वेजिटेबल्स थी वो भी नीचे गिर गई। छोड़ूंगे नहीं, एक एक वेजिटेबल को टुकड़ा टुकड़ा कर कर करके खाऊंगी, ऐसे सोच के हाथ नहीं उसकी तरफ दौड़ पड़ी और वो उसने एक 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 फल को उठा के खाना शुरू कर दिया। फल भी है, वेजिटेबल। ओ ये कौन सी स्मेल है भाई, ये तो मुझे ब्रेड की, कुकीज़ की, बिस्किट की स्मेल आ रही है। चलो बहुत हो गया फल फूल खाना, अब जाते हैं ब्रेड की तरफ। वहाँ पे ब्रेड की खुशबू आ रही है और तीनों चारों एनिमल्स जो है, ये है एलिफेंट जो है, ये उस ब्रेड की तरफ निकल पड़े। ब्रेड रखा है, जिस कबर्ड में उसे रखा था उसको नॉक करके उन्होंने वहाँ से निकाल लिया ब्रेड का बड़े बड़े पाउचेस है, वो पॉलीथीन के साथ, बॉक्स के साथ वैसे के वैसे खा लिए। भाई इतना टाइम किसको है कि ऊपर का रैपर निकालेंगे और पॉलीथीन निकालेंगे, प्लास्टिक का बैग निकालेंगे, इतना टाइम किसको है। डायरेक्ट आया मुंह में, उधर अंदर पेट जो है ना भाई, पचा लेगा हमारा पेट। ये क्या, अब यहाँ पे तो उसको फ्रिज है, कूलर है, लेकिन उसमें कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ मिली तो नहीं है। छोड़ दो इसको, तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, ऐसे करके हुए। अरे ये क्या है, ये तो प्लेट है भाई, हम कहाँ प्लेट में खाना खाएंगे। ये क्या है, ये तो ग्लास है भाई। ऐसे ली अपनी सूंड और जो हिलाई है, सारा का सारा टूट गया, ज़मीन के ऊपर टूट के निकल गया, पड़ गया, फूट गया। ओहो वाह वाह, क्या आनंद है भाई, पहली बार जिंदगी में ऐसी चीज़ करने को मिल रहा है, कोई मरने के लिए भी नहीं आ रहा है। ये लो फ्रिज के पास गए और फ्रिज की वायर को जैसे ही इसने अपने सूंड में पकड़ा, जोर जोर से हिलाना शुरू कर दी। ये क्या, नीचे से ऊपर से, ओहो गैस का सिलेंडर है, वहाँ की वायर निकल गई है और गैस पूरा एरिया में फंस गया है। ये गंदा स्मेल है, गंदा स्मेल आ रहा है भाई, ये गैस का स्मेल है। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो सारे के सारे उड़ जाएंगे, मर जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे। चलो भाई, ये गैस का सिलेंडर इसने वायर निकाल लिए, गैस पूरा एरिया में भर गया। यल्ला अभी ये बचेंगे नहीं, ये मरेंगे। इधर किसी ने अगर थोड़ा सा भी नुकसान कर दिया ना, पूरा का पूरा जल के मर जाएंगे। यार ऐसे मत करना, ये गलत बात कर दी इन लोगों ने। आप सही वाली बात कर देना मेरे चैनल को भाई, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे वीडियो है, देखो जी।